right. Thank you very much, Intisa. Let this wonderful address, I take you to Ashutosh Kumar. He's one of the, dedicated professional towards enterprise leadership development. Ashutosh ji joined Jagriti in 2008 in the founding year. He was an integral part of the team, playing the role of executive director from 2012 to 2015. Now, he advises the executive team in strategy, an IIT Kharagpur alumnus. He is a theater enthusiast and has also made several short films. Ashutosh brings great creativity and humor to the team. He has led Jagriti Yatra successfully for the last 4 years. I would invite Ashutosh Kumarji to address this wonderful conference. Thank you. Thank you, Siken. Thank you, Munna, and thanks to the entire team and family of Khwab Foundation for inviting me here. I think it's a great occasion that we are celebrating Kalamji's message, Kalamji's life, philosophy, and his leadership style to inspire more and more young people. And I remember that when we were starting Yatra, Jagriti Yatra, the train journey that we do, which I will share with all of you, in the beginning years, I think that was the first year or maybe second year, we were very keen to have Kalamji as well on our train to address the participants we were meeting. So we actually went to see him in Delhi in his in Rashtrapati Bhavan, and had a small discussion with him. And he unfortunately could not make it to the Yatra, but he left a message. He gave us a message for all the young participants who were coming on the Yatra, on the Yatris. And that message I still remember was so deep, was so powerful, that it still inspires us whenever we hear that today. आज भी जब हम उस मैसेज को सुनते हैं, एक मोबाइल रिकॉर्डिंग उन्होंने दी थी, तो आज भी जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश भर के आ जाता है. तो कहीं ना कहीं डॉक्टर कलाम जी ने हम सभी के जीवन को छुआ है. He has inspired all of us in a small way or a bigger way, but in some way he has touched so many lives, and I think that was his core mission. After a point of time when he realized that he has done so much for the country, he has done enough, it's time for him to inspire more people so that more leaders can be created. Because a country, especially a country like India, it can't be run by a handful of leaders जो इक्के दुक्के जो दिल्ली में बैठे हैं या बड़े राजधानियों में बैठे हैं. लीडर्स छोटे जगहों से निकालने पड़ेंगे, छोटे शहरों से, गांव से निकाल के लाने पड़ेंगे. और कलाम जी एक तरह से उसके अद्भुत मिसाल थे. रामेश्वरम से चलकर राजधानी तक पहुंचे, तो वैसी मिसालें हमें और खड़ी करनी पड़ेंगी. और एक तरह से कलाम का भी मिशन बन गया था. और इसीलिए वो जब राष्ट्रपति बने थे तो अधिकतर समय उनका जो जाता था कि कैसे मैं और युवाओं से बात करूं, हाउ डू आई इंस्पायर देम, हाउ डू आई टॉक टू देम. एंड ही लिटरली स्पेंड सो मेनी hours of his later life in just inspiring other people, building other leaders. So that is his life essentially became a message, right? And that's what I really like about him, I love about him, and I continue to get a lot of inspiration. So I am going to just talk a bit about what we are doing through this Jagriti Yatra, because our belief is similar to Dr. Kalam, that if we want to build a great nation, if we want to build a great society, it can only be possible by creating more leaders, by inspiring more leaders. अच्छा, जो लोग बातचीत कर रहे हैं जरा ध्यान से सुन ले. तो थ्रू दिस ख्वाब फाउंडेशन, जो जितने युवा यहाँ पे आज आए हैं, जुड़े हैं हमारे साथ, तो हमारा भी ये मिशन है, ध्येय बन गया है थ्रू यात्रा, दैट हाउ कैन वी इंस्पायर मोर पीपल लाइक यू, राइट? जो आप छोटे शहरों से हैं, गांव से, मोतिहारी से हैं होंगे या फिर किसी और इस तरह की जगहों से, तो कैसे आप लोग आगे बढ़ के आए, आप लोग एक नई प्रेरणा ले, एक नया उत्साह ले, नई चीजों को सीखें,
लेकिन ये सारी चीजें सीख कर देन यू गो बैक टू योर ओन प्लेस, योर ओन डिस्ट्रिक्ट, योर ओन टाउन, योर ओन विलेज, एंड देन यू ट्राई टू ब्रिंग चेंज देयर। आप वहां पे एक बदलाव लाने की कोशिश करें। तो इस लीडरशिप की जर्नी में, क्योंकि ये यात्रा बड़ी ही लंबी होती है लीडरशिप की, और इतनी आसान भी नहीं है, हम एज अ जागृति यात्रा, एज अ जागृति ऑर्गेनाइजेशन, जागृति मतलब ही जैसा आपको पता है कि अवेकनिंग होता है, तो हमारा यह ध्येय बन गया कि हम कैसे आप लोग के साथ जुड़े, युवाओं के साथ जुड़े और आपको और प्रेरित करें, और आगे फिर हम आपको सपोर्ट भी करें। तो मेरे कुछ स्लाइड्स हैं, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि यात्रा किस तरह होती है, उसमें क्या होता है। उसके बाद अगर कुछ सवाल होंगे तो फिर मैं आप लोग से लूंगा। और एक लास्ट में एक अनाउंसमेंट भी है जो इस वर्ष की यात्रा को लेके है, जिसके बारे में मैं आप लोग से बातचीत करूंगा। ओके, तो ये जो है बिल्डिंग इंडिया थ्रू एंटरप्राइज, हम कहते हैं उद्यम से भारत निर्माण, कि हाउ कैन वी क्रिएट मोर लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी जिनको हम कहते हैं, और उस उन उद्यमियों के जरिए कैसे हम इस देश का निर्माण कर सकते हैं। तो दिस इज जागृति कोर मिशन। तो बिफोर आई गो इनटू यात्रा में क्या होता है, हम कैसे करते हैं, एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि आई थिंक ये दूसरे यात्रा की बात है, दूसरे या तीसरे यात्रा की बात है, जब हम लोगों ने मुंबई से अपने इस रेल यात्रा की शुरुआत की थी, और लगभग 500 यात्री वहां पर आते हैं जो उस यात्रा में जाते हैं। तो काफी सारे यात्री थे, मुंबई स्टेशन था, रात का समय हो चुका था, हम सब ट्रेन का इंतजार कर रहे थे उस प्लेटफॉर्म पे। और एक यात्री थी, एक लड़की थी जो शायद मुंबई से या कहीं और से थी, मुझे जगह याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने उससे पूछा कि what is your purpose of getting on this train, why are you coming on this yatra, right? And she said ki actually I'm confused, मुझे नहीं पता मैं क्यों आ रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, मैं इतनी सारी चीजें करना चाहती हूँ, तो मैं एकदम कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। और मेरा ये विश्वास है, मेरा ये होप है कि इस यात्रा में आने से शायद मेरा ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग ऑन दिस ट्रेन। एंड आई सेड वंडरफुल, मतलब ये अगर आपका उद्देश्य है इस यात्रा में आने का तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इस यात्रा में अधिकतर लोग ऐसे ही आते हैं जो कंफ्यूज्ड होते हैं शुरू में, उनके लिए ही यात्रा है। तो देन शी केम ऑन द ट्रेन, और उसने यात्रा अपनी आरंभ की। 4-5 दिन बीते, हम लोग काफी लोगों से मिले इस दौरान, 2-3 जगह हम गए। एंड देन करते करते व्हेन ट्रेन आई थिंक केम टू अ प्लेस कॉल्ड नालंदा, जो बिहार में, तो वहां पे राजगीर स्टेशन था, वहां हम उतरे। और वहां पे फिर मुझे वो यात्री दिखी, वो लड़की दिखी, तो मैं सोचा कि चलो फिर से बात की जाए। तो आई वेंट टू हर एंड आई आस्क्ड हर कि आई रिमेम्बर दैट व्हेन यू वर बिगिनिंग दिस जर्नी, आप कंफ्यूज थी, राइट? आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करना चाहती है। तो आज 4-5 दिन हो चुके हैं, अब आपको कैसा लग रहा है, व्हाट इज योर मेंटल स्टेट नाउ? तो शी रिप्लाइड कि आई वाज कंफ्यूज्ड व्हेन आई स्टार्टेड द जर्नी, एंड नाउ आई एम कॉन्फिडेंटली कंफ्यूज्ड। तो दिस वाज अ शॉकर फॉर मी कि कॉन्फिडेंटली कंफ्यूज मतलब क्या हुआ, कि अगर आप एकदम कंफ्यूज्ड है लेकिन आप पूरे विश्वास के साथ कंफ्यूज्ड है, राइट? पूरे मतलब आपका पूरा विश्वास है। तो आई मीन मैं समझ नहीं पाया, एंड आई वांटेड टू आस्क हर व्हाट एग्जैक्टली डज शी मीन बाय सेइंग कि शी इज कॉन्फिडेंटली कंफ्यूज्ड, बट बाय द टाइम आई वुड हैव अप्रोच्ड हर एंड आस्क्ड हर, शी डिसअपीयर्ड इन द क्राउड, वो चली गई कहीं। तो मैं खुद ही सोचा कि इसका कहने का क्या मतलब था। मेरा इंटरप्रिटेशन यही था कि देखिए, यात्रा में होता क्या है कि 500 लोग जाते हैं, युवा आपकी तरह अलग अलग उद्देश्य के साथ आते हैं, लेकिन कुछ करने का जज्बा होता है, कुछ करना चाहते हैं। जैसे मुन्ना कुमार हमारे काफी अच्छे यात्री रह चुके थे, काफी बार यात्रा में आए हैं, तो उनमें आप देखेंगे एक जज्बा है कुछ करने का, अपने प्रांत के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और पूरे देश के लिए। तो इस तरह के लोग आते हैं उस यात्रा में, और आप उन यात्रियों के साथ पूरी यात्रा करते हैं। तो
लोग जब कंफ्यूज स्टेट में आते हैं और जब ऐसे और लोगों से मिलते हैं, 500 लोगों से, जिनमें एक उत्साह है, कुछ करने का जज्बा है, और एकदम जो कहते हैं आइडियाज का एक पूरा बवंडर मच जाता है उस यात्रा में। हर तरफ से आइडिया आ रहा है, हर किसी के आइडिया आ रहे हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं डेयरी फार्म चला सकती हूँ, मैं कुछ हैंडीक्राफ्ट में कर सकता हूँ, मैं एजुकेशन में कुछ करना चाहता हूँ। तो सडनली इतने आइडियाज आते हैं, आप और कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट, कि अब मैं क्या करूँ, इतने सारे और आइडियाज आ गए। लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि आप में एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास आ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब मैं इस यात्रा से वापस जाऊंगा या जाऊंगी, मेरे पास इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने सारे लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, 500 लोग। और इसे 500 नहीं, अगर पूरी यात्राओं के हम लोगों को मिला लें, लगभग 6,000 से ज्यादा। सो दोज मेनी पीपल आर स्टैंडिंग विथ मी, दिस इज माई कम्युनिटी नाउ। ये मेरा ये मेरा एक समुदाय बन चुका है जो मुझे हमेशा हमेशा सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो एक गजब का आत्मविश्वास आ जाता है, एक गजब का कॉन्फिडेंस आ जाता है, एंड देन यू आर रेडी टू टेक अ जंप, यू आर रेडी टू टेक रिस्क इन योर लाइफ। आप आगे बढ़ के कुछ भी कर सकते हैं। तो ये स्टोरी मैं इसलिए साझा कर रहा था कि दिस विल टेल यू कि यात्रा में क्या होता है, हम कैसे करते हैं। तो नाउ कमिंग टू द मेन यात्रा। सो ये आपको दिख रहा होगा कि एक भारत का नक्शा बना है, मैप है, और उस पे एक लकीर खींची हुई है। तो दैट इज द रूट ऑफ द ट्रेन जर्नी दैट वी टेक। वी स्टार्ट फ्रॉम मुंबई ऑन 24 दिसंबर। 15 दिन की यात्रा होती है, 8,000 किलोमीटर की यात्रा होती है। लगभग 500 हम यात्रियों का चयन करते हैं, काफी एक अच्छा तरीका होता है, और उनको देश के अलग अलग कोनों में लेके जाते हैं। एंड एट ईच ऑफ दीज प्लेसेस वी मीट सम इंस्पायरिंग रोल मॉडल। आई वुड नॉट से डॉक्टर कलाम की तरह, बिकॉज डॉक्टर कलाम जो है वो एक अलग ही तरह के लीडर थे, बट और भी काफी ऐसे लीडर्स हैं जो छोटी छोटी जगहों पे काफी अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। तो वी गो एंड वी मीट देम, वी लिसन टू देयर स्टोरीज, उनसे समझते हैं, बातचीत होती है, और 500 लोग साथ में पूरा ट्रैवल करते हैं। तो दैट्स हाउ वी हैव डिजाइन द यात्रा। और रेल यात्रा हमेशा ही सुखद होती है, रेल यात्रा हमेशा ही काफी इंस्पायरिंग होती है, क्योंकि आप एक तरह से पूरे देश का जब भ्रमण कर रहे होते हैं, तो यू सी द एंटायर कंट्री इन इट्स ब्यूटी, इन इट्स डाइवर्सिटी, इन इट्स मेजेस्टी, कि कितना सुंदर देश है हमारा, पहाड़, पर्वत, नदियां, ये सब से भी आप गुजरते हैं। तो आप बाहर तो लोगों से मिलते ही हैं, समझते हैं, बट आपके अंदर जो है काफी मंथन चल रहा होता है, काफी मंथन, एक ऊहापोह मच जाती है कि मैं क्या करूं, अब मैं कैसे इस देश के बदलाव में अपनी भागीदारी दूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूँ। तो उस तरह के काफी सवाल अंदर आते हैं जो आपको प्रेरित करते रहते हैं। तो हमने 2008 से यात्रा करनी शुरू की। लगभग 6,000 से ज्यादा लोग इस फिजिकल यात्रा के जरिए जा चुके हैं। 28% से ज्यादा उसमें से उद्यमी बन चुके हैं, वो अपना खुद का उद्यम या बिजनेस कुछ चला रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये काफी लघु उद्योग है, ऐसा नहीं कि कोई इसमें इन्फोसिस बन गया है, वैसा नहीं है। वो लोग अपना डेयरी फार्म चला रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट का चला रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में काफी हल्दी प्रोसेसिंग का कोई काम कर रहा है, कोई मशरूम उगा रहा है। तो इस तरह के छोटे छोटे बिजनेसेस जिसके जरिए स्थानीय रोजगार भी पैदा हो सके, क्योंकि वर्तमान में जो देश को सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार है। और खासकर छोटे शहरों और गांव में तो उसकी मारामारी चल रही है, राइट। पीपल आर जस्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम स्मॉलर प्लेसेस टू मुंबई, दिल्ली, जाके वहां चौकीदार की नौकरी कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। क्यों क्यों नहीं आप अपने जगह जहां पे हैं वहां एक छोटा सा ही बिजनेस चलाएं, और लोगों को रोजगार दें, अपना जीवन आप और समृद्ध करें। तो ये हमारी सोच है, और इसके लिए हम सारे युवाओं को प्रेरित करते हैं। ये एक हमारा एक फ्रेमवर्क है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, कि हमें इंस्पायर करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। इनोवेशन के ऊपर हम बात करते हैं कि किस तरह के नवीन विचार के जरिए आप बदलाव ला सकते हैं। तो कृषि हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, शिक्षा हो सकती है, महिलाओं को लेके कुछ हो सकता है, डिजिटल यानी टेक्नोलॉजी को लेके भी काफी कुछ अब प्रयोग किया जा रहा है, तो वो हो सकता है। तो इस तरह का इनोवेशन के ऊपर चर्चा होती है। और फाइनली इंक्यूबेशन, जिसका अर्थ है कि अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, प्रेरित हो चुके हैं और करना भी चाहते हैं, तो हम किस तरह आपको सहयोग दें। मार्केट से जुड़ाव हो सकता है,
पूंजी के जरिए हो सकता है, या मार्गदर्शन हो सकता है, वो भी आपको मिल सकता है। तो दीज 3 I's, इंस्पिरेशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन, दैट इज द फ्रेमवर्क दैट वी हैव डिजाइन फॉर आवर यात्रा। ये कुछ रोल मॉडल्स है हमारे, जिनको हम कहते हैं, जिनको हम यात्रा के दौरान मिलते हैं, और एक से बढ़कर एक है ये लोग। जैसे बंकर रॉय जी का इसमें आप एक चित्र देख रहे हैं ना। बंकर कम्स फ्रॉम तिलोनिया, ही रन्स अ बेयरफुट कॉलेज, एन एक्सट्रीमली एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन। इनका एक बिलीफ है, विश्वास है कि आपको गांव में लोगों को रोजगार देने के लिए या आय के साधन देने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक स्किल चाहिए। आपको आना चाहिए कि आप कोई चीज कैसे कर सकते हैं, और एक बार आपने वो सीख लिया तो देन यू कैन गो अहेड एंड डू इट, राइट। यू डोंट नीड अ डिग्री, फैंसी डिग्री की जरूरत नहीं है। और तिलोनिया में उन्होंने यही साबित किया है। जाइए वहां, मिलिए, महिलाएं हैं, अशिक्षित हैं, लेकिन सोलर पैनल बना रही हैं, रूट कनाल सर्जरी कर रही हैं, और वो भी बूढ़ी दादियां, नानियां, वैसे लोग कर रहे हैं। डॉक्टर वी की एक चित्र है जो मेरे सबसे प्रिय है। मदुरई में अरविंद आई केयर इन्होंने शुरू किया था 62 साल की उम्र में। और आज अरविंद आई केयर जो है, देश का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा एफिशिएंट आई केयर है। जिस रेट पे वहां पे आंखों की सर्जरी होती है, खासकर कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद की, पूरे देश में उस रेट पे नहीं होती है। तो इस तरह का उन्होंने मॉडल वहां पे क्रिएट किया है। तो वो एक तरह से लोगों की सेवाएं भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अच्छा कमा भी रहे हैं, उसको एक बिजनेस के रूप में आगे चला रहे हैं। और अरविंद आई केयर से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो डॉक्टर अब्दुल कलाम से रिलेटेड है, कि कलाम जी वहां पे गए थे एक बार देखने के लिए कि किस तरह ये चलता है। तो वहां क्या है कि 2 डिपार्टमेंट बने हैं। एक डिपार्टमेंट, अगर आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं है आपका देने के लिए शुल्क के रूप में, तो आपको फ्री चिकित्सा मिलती है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप जाइए, पैसे दीजिए, और आपको चिकित्सा मिलती है। तो दोनों जो फ्री होता है और जहाँ पे करना पड़ता है, उसके क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। आपको एकदम सेम सर्विस मिलेगी, बिल्कुल सेम। वो एक भेदभाव नहीं करते हैं कि आप पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो डॉक्टर कलाम इसको परखना चाहते थे। डॉक्टर कलाम गए अरविंद आई केयर, और वहां जाके वो जो फ्री है उस डिपार्टमेंट में चले गए कि मैं पैसे नहीं दे सकता, तो आप मेरी मदद कीजिए। और उनको, खैर वो वहां गए, उन्होंने अपना को दिखाया, और उनको वहां पे, तो ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि भाई, मतलब इट डजेंट मैटर वेदर यू आर गिविंग मनी और नॉट, यू आर गेटिंग द सेम क्वालिटी ऑफ सर्विस। सो ही वॉज थॉरली इम्प्रेस्ड। तो इस तरह के और भी हम काफी इंस्पायरिंग लोगों से यात्रा के दौरान मिलते हैं। ये कुछ चित्र है। तो ट्रेन के अंदर काफी संवाद होता है, पीयर टू पीयर बातचीत होती है, एक दूसरे से सीखने को मिलता है। क्योंकि हमने ये भी समझा है कि इस पूरे 12-13 साल में, कि जो सीख आपको बड़े लोगों से मिल सकती है, जो रोल मॉडल से मिल सकती है, उतनी ही या उससे कहीं ज्यादा आपको अपने सहपाठियों से, अपने सहभागियों से मिल सकती है। जब आप उनकी कहानी जानते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग इन देयर ओन प्लेसेस, तो आपका इंस्पिरेशन और ज्यादा हो जाता है, राइट। जैसे अगर मैं इस ट्रेन में हूँ, मेरे बगल में कंपार्टमेंट में मुन्ना जी बैठे हैं, और मुझे पता चले कि मुन्ना ख्वाब फाउंडेशन के जरिए क्या कर रहा है, मुझे उससे ज्यादा उत्साह मिलेगा, उससे ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो एक तो पीयर टू पीयर होता है, ट्रेन के अंदर काफी सारे एक्टिविटीज होते हैं, आप जाते हैं, देश घूमते हैं, गांव में लोगों से मिलते हैं, थोड़ा शहरों की भी चर्चा की जाती है। तो पूरा मिला जुला के हम लोगों ने काफी अच्छा कार्यक्रम इसको डिजाइन किया, जहाँ अनुभव के जरिए आप सीखते हैं, जो एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम हम कहते हैं। ये कुछ चित्र है कि कुछ लोग हैं जो एक बिजनेस प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनको एक समस्या दी गई कि दिस इज द प्रॉब्लम, हाउ डू यू सॉल्व इट बाय क्रिएटिंग अ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। तो उसके ऊपर वो गांव वालों को वहीं पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप ये चीजें कर सकते हैं। तो इस तरह की काफी एक्साइटिंग चीजें होती है। इन्हीं में से काफी लोग आगे बढ़ के आते हैं और कहते हैं कि मैं अब इस आइडिया पे काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टर्न दिस इनटू एन एंटरप्राइज। फिर हम उनको सपोर्ट भी करते हैं। कम्युनिटी जो मैंने कहा बन जाती है, 6000 से ज्यादा लोग अब इस कम्युनिटी में बन चुके हैं। युवा है, पूरे देश भर में है, कुछ बाहरी देशों में भी है। कभी भी किसी को कोई जरूरत पड़ती है तो इस नेटवर्क के पास पहुंच जाता है, उनसे बातचीत करता है, और फिर उनको वो सपोर्ट मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है। तो ये
समुदाय की बात है, कम्युनिटी जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं स्किप करता हूँ। तो ये मतलब मैं जागृति पे आ जाता हूँ कि कैसे हम लोग जागृति में हमारी सोच क्या है कि देश जो है, अगर आप देखें 1.3 बिलियन की आबादी है, उसमें से अधिकतर लोग जो है इस मध्य में रह रहे हैं, मध्य भारत जिसे हम कहते हैं। इस मध्य भारत के पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए एक छत है, और अब ये मध्य भारत है और जो इसमें युवा है, नाउ दे वांट टू डू समथिंग बिगर इन देयर लाइफ। वो अपने जीवन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं उद्यम के जरिए, एंटरप्राइज के जरिए। तो कैसे हम उनको उद्यम बनाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए सहयोग करें, कैसे हम एक इकोसिस्टम का निर्माण करें, तो उसके ऊपर अब हमारी और सोच चल रही है और प्रक्रिया चल रही है। और उसके लिए हम लोगों ने एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेंटर की भी कल्पना की है जिसपे हम लोग काम करना शुरू कर दिया है, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन सेंटर कह रहे हैं। और ये आप जहाँ मतलब ख्वाब फाउंडेशन जो जहाँ है वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में इस सेंटर की स्थापना की जा रही है 6 एकड़ की ज़मीन पे। और इसका उद्देश्य यही है कि कैसे हम लोकल उद्यमियों को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरह के बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं अच्छे दिखने वाले, जिसमें सारे आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, वो देश के बड़े शहरों में है, मुंबई में है, बैंगलोर में है, दिल्ली में है। बट व्हाई नॉट एट इन दीज प्लेसेस, व्हाई नॉट इन प्लेसेस लाइक मोतीहारी या फिर देवरिया। इन जगहों को भी इस तरह के इंस्टीट्यूट की उतनी ही जरूरत है जहां लोग जा सके, उनको सपोर्ट मिले, इंस्पिरेशन मिल सके। तो उस एम के साथ नाउ वी आर बिल्डिंग दिस सेंटर इन देवरिया। काम शुरू हो चुका है और अक्टूबर नवंबर तक वी प्लान कि उसका एक फेज स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ उद्यमी आना शुरू कर देंगे और उनको फिर हम सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप में से खासकर इस देवरिया जो पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, या बिहार का उत्तरी इलाका, और वहाँ से अगर आप में से कुछ लोग हैं जो इसको अटेंड कर रहे हैं, इच्छुक हैं कि आप भी सेंटर से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज आगे आइए और मुझे बताइए। तो आई विल स्टॉप हियर। और एक बस मैं ये अंत में कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष कोविड के कारण हमारी जो फिजिकल यात्रा है वो हम उसको नहीं कर पाए, वी हैड टू स्टॉप डूइंग, एंड दिस ईयर आल्सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। तो व्हाट वी हैव डिजाइन्ड इंस्टेड, एक डिजिटल यात्रा का हमने निर्माण किया है। तो डिजिटल यात्रा भी फिजिकल यात्रा की तरह ही है, 15 दिन है, आप आएंगे, जैसे ये जूम के जरिए हो रहा है वो भी एक तरह से जूम के जरिए है। आप वहां पे आएंगे, 500, पिछले बार 700 लोग उस पे आए थे, इस साल हम 2000 लोगों को लाना चाह रहे हैं, आप जैसे लोगों को। तो वो आप आइएगा उस पे, फिर आपकी बातचीत होगी काफी सारे स्पीकर के साथ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आप लोग की आपस में काफी बातचीत होगी। उसके लिए हम लोगों ने काफी सारे अभियान किए हैं, बिकॉज एज आई सेड यू लर्न मोर फ्रॉम ईच अदर। तो वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, डिजिटल यात्रा काफी इंटरेस्टिंग है इस साल। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जितने इसमें हैं कि आप वो वेबसाइट पे जाइए, jagritiYatra.com है, उसको देखिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज अप्लाई कीजिए। एंड अगर और जानकारी चाहिए तो मैं हूँ, चाहे मुन्ना कुमार भी है जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो ही कैन ऑल्सो शेयर लॉट ऑफ डिटेल। तो लेट मी स्टॉप हियर। आप सभी का बहुत बहुत फिर से धन्यवाद फॉर गिविंग मी दिस फोरम। एंड सिकेन जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच आशुतोष सर, अमेजिंग। मुझे लगता है कि ये तमाम बातें कहीं ना कहीं आज जो भी लोग इस वक्त इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। और अपने साइड से भी मैं कहना चाहूंगा कि इस डिजिटल यात्रा में जितने भी खास तौर पे जो एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक यूथ इस वक्त हैं, जरूर पार्टिसिपेट करें। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जिस भी तरीके के स्टेप हमें लेने हैं इस कंट्री के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, ये तमाम चीजें हमें इंस्पायर करेगी। थैंक यू वेरी मच सर। आई वांट